हाँ जी. So there is a particle of mass 1 kg and it oscillates with SHM and the angular frequency is given to be 1 radian per second. You have to find the phase of this particle. Find the phase of this particle at t is equal to 1 second and at t is equal to 2 second. The initial phase is okay. So the start point at t is equal to 0 is the mean position, which means it is at equilibrium. So यहाँ से bob है तो यहाँ से शुरू हुआ है. T is equal to 0, phi is equal to 0. You have to calculate its phase, the phi, which means phase का मतलब क्या होता है? The position of SHM at any instant t is given by the equation A sine omega t plus phi. So this whole thing is called the phase. ये पूरे को बोलते हैं phase. ये obviously the epoch constant और initial phase होता है at t equal to 0. So at t equal to 0, the initial phase from where it started is this. But this whole term, which is omega t plus phi naught, okay, is known as the phase of the SHM. जो साइन के अंदर वर्ड होता है, जो साइन थीटा, वैसे भी बोलते हैं इसको. थीटा is the phase. So you have to find the phase for this situation. When t is equal to 1 second, t equal to 2 second, omega is given to be 1 radian per second. This is the, so your phase is equal to omega t plus phi naught. So omega is 1, time is 1, any t is equal to 0, phi naught is 0, is equal to 1 radian. And then if you have to find phi at t equal to 2, same omega 1 into 2 plus 0 is equal to 2 radians. Okay. So whatever is written inside sine is called as the phase of the particle at that instant. Any doubts? नहीं. ठीक है. कई बार क्वेश्चन आ जाता है, find the relationship between phase difference and time difference. You will start seeing the questions now. So let's say if at x is equal to a by 2, so the position of the body is in half of the amplitude, and this is when at t equal to 0. So you can always start from, instead of starting like this, maybe your amplitude is here, right? You start from here, which is half the amplitude. So this is your start point at t equal to 0. So phi naught is given to you. You have to find the phase constant in x is equal to a sine omega t plus alpha. So the epoch, the constant part, which is at t equal to 0, has to be find out. How will you find this out? At t equal to 0, x is equal to a by 2. You have to find alpha, which is the constant part of the phase, right? This is the phase constant. पूरा phase तो होता है omega t plus phi, but alpha is at t equal to 0. How will you find now? So you should have a strong grip on the concept of phase also. Put it here. Equation में x equal to a by 2 is equal to a sine omega ओमेगा into टी प्लस 0 अल्फा. plus alpha. ए से कट गया. Exactly. तो 1/2 Sine, इज इक्वल्स टू साइन. alpha. साइन That is साइन correct. Hmm. ओमेगा प्लस अल्फा, नहीं, साइन अल्फा. Right. और अल्फा आ जाएगा Right. π/6. Right. Or 5 pi by 6. Be very careful about trigonometry also. Sine is positive in two quadrants. First quadrant and ठीक है. second और quadrant. 5/6. Yes. Okay. ठीक है. Okay. Now, do you agree that if the uh, displacement of the body is a by 2,
मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे, मान लो ये यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी, छोड़ोगे तो इधर जाएगा ना ये, इट विल नॉट गो हेयर, हाँ। हाँ जी। है ना, हम्म। गो हेयर, राइट. So what you do now is in the second step, for alpha is equal to pi by 6 and alpha is equal to 5 pi by 6, calculate the velocity. v निकालना है आपको when alpha is equal to उन्हीं उसी पे, एट t इक्वल टू जीरो पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू जीरो. सो जब तो आपने छोड़ा था यहाँ पे, when you were here, what was the velocity? When your initial phase instantaneous velocity कितनी थी? Since you know x, you can take derivative of x and you can find the velocity. x मालूम है ना, a ए sin साइन। omega t plus alpha. So dx by dt सर रुक is जा, मैं equal निकाल to रहा a omega cos of omega t plus alpha. हाँ, देखो क्या आता है. टी इक्वल्स टू जीरो, ए ओमेगा कॉस अल्फा। ए ओमेगा बाय टू। क्या? वेलोसिटी। नहीं, अल्फा क्या डाला है? अल्फा सर वो 5/6। और पाई बाय सिक्स, दो है अल्फा. पाई बाय सेकेंड सिक्स क्वाड्रेंट, तो। इफ यू पुट 5 पाई बाय 6, वो तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, you should get a negative value. And pi by 6, pi by 30 is root 3 by 2. Cos की वैल्यू भी गलत है. -√3 ए हाँ. ओमेगा बाय टू और √3 ए ओमेगा बाय टू। ओके. क्या निकले दो आंसर? क्या दो आंसर आए हैं? एक आया है माइनस, इन दोनों में से ठीक कौन सा है? प्लस वाला या माइनस वाला? माइनस वेलोसिटी. वाला। क्यों? क्योंकि Why? Why negative velocity is more acceptable to you? Obviously, it'll, when you leave it, it'll start moving towards this direction, right? Negative direction. तो साइन कन्वेंशन से जो लेफ्ट साइड जो वेलोसिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? नेगेटिव होती नेगेटिव होती हैं. साइन कन्वेंशन. है। वेलोसिटी एक वेक्टर है। यस. तो दोनों निकालने पड़े. ट्रिकी क्वेश्चन, राइट? हाँ। It didn't stop at phase. It tested you on two phase constants and okay, let's say another question. तो phase के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए क्योंकि काफी क्वेश्चन phase के ऊपर होते हैं. Okay, let me draw a diagram first. Okay, so let me draw a diagram and this is my diagram. So I'm going to draw sine curve, sine curve. Okay, so this is 1, 2, 3,
and 4. So this is A and this is A by 2. सॉरी ये वाला पॉइंट है, इसको जरा मैं मिटा ही देता हूँ. And this is A by 2. This is origin. This is सॉरी ये क्या कर दिया. जाना तो ऐसे चाहिए ना ये. This is A by 2. A by 2 and this is minus A by 2. These 2 points are at minus A by 2 plus A by 2. Okay. So 4 points. This is 1. This is 2. This is 3 and 4. 3 and 4 are at minus A by 2 level. Okay. And this is T. This is X. And obviously this is a sine. Okay. Part number A. You have to identify the points of same displacement but opposite directions. Sure. You have to find the points of same displacement but opposite direction. Okay. And you also need to find the time difference between them when you attain them. Okay. Find the time difference between such points which are at the same displacement but in the same. Obviously, you are at A by 2 at certain point यहाँ पे and again here and in and same displacement is A by 2. तो आपको वो and then you have to find कि ये टाइम जो है T1 T2 ये टाइम है जब आपने उनको अटेन करा उन एम्पलीट्यूड्स को पोजीशंस को T4. You have to find the time difference also between them. So you have to find the points of same displacement, but the direction of motion for those 2 points should be opposite. And then you have to find कितना उनके बीच में gap है, right? अब for example 1 and 2 are at the same displacement A by 2 A by 2, right? So half the, for example, you started ये तो sign है तो at t equal to 0 you can see the position is 0, right? Okay, so when you go like this is extreme. A by 2 आया पहली बार T1 पे, so this is T1. फिर वापसी में फिर से आया यहाँ पे, so that is T2, right? So these are the 2 points being asked. कि what are where are the same displacements but in the opposite direction? मतलब velocities at that point are opposite. And what is the time difference? What is the time difference between T1 and T2, which is to be calculated obviously in terms of the T, which is the overall time period की terms में. What is the difference between T2 and T1? And similarly, you will have and second thing you have to find is the same displacement, okay, where the particles move in the same direction. Identify the points where the identify points where the particles move in the same direction. लेफ्ट है तो दोनों ही लेफ्ट पे जा रहे हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे गया तो ये मेरी 1 पोजीशन है, ये मेरी 2 पोजीशन है. फिर मैं इसको क्रॉस करता हुआ इस तरफ गया तो पहली बार जब मैंने क्रॉस करा तो आई रीच दिस पॉइंट, राइट? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड माई एम्पलीट्यूड इज माइनस A by 2 एंड आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये वाला जो पॉइंट है ये 3 है और मैं जा इस तरफ रहा हूँ. ये वाला मेरा पॉइंट 2 है और तब भी मैं 2 पे भी मैं लेफ्ट पे ही जा रहा हूँ. सॉरी ये 1 है, ये मेरा 2 है. तो 2 पे भी मैं आई एम गोइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 3 पे भी आई एम गोइंग ऑन. व्हेन आई गो टू द एक्सट्रीम पॉइंट आई कम बैक, right? Again I am here, so this is 4. So 4 and 1, 4 is also in this direction, in this direction. So 1 and 4
and 2 and 3 are the points which are in the same direction. तो हमें पॉइंट ढूंढना था. तो पॉइंट्स, ये तो पहले का तो आंसर है, सिर्फ पॉइंट बताने. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज उन दो पॉइंट्स के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है. सो सेकेंड पार्ट भी हमने कर लिया, मतलब कि फाइंड द टू पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, दैट वी हैव फाउंड आउट. बट द रियल पार्ट इज, ये सी हो गया, डी हो गया, इन दोनों का व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम. व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन two points having velocity in the same direction. मतलब 3t/4 है, क्या है velocity in the same direction. So you should know कि हाफ एम्पलीट्यूड पूरा करने के लिए टाइम पीरियड की टर्म्स में a/2 है. तो मान लो ये आपका, ये इधर से इधर गया, a/2, सॉरी a, राइट. तो ये टोटल टाइम कितना होता है जब SHM का ये वाला t/4, फिर ये वापस आया, ये t/4 होता है, फिर ये इधर गया, ये भी t/4 होता है, और जब ये वापस आया ये t/4 होता है. सेम ही टाइम उसी है। तरह से किसी भी जगह पे अगर आपको निकाल, वो इक्वली डिवाइडेड जब तक एम्पलीट्यूड की बात है. बट इफ इट कम्स टू a/2 फॉर एग्जाम्पल, इसलिए आवाज कट रही। फेस ऑफ 0 by t of 2 pi by is equal to 60 degree which is pi by 6, right. तो अगर साइन तो चला गया, खैर अगर मैं ऐसे लिख दूं तो, सो पाई पाई गेट्स कैंसल्ड एंड टी कम्स आउट टू बी हाउ मच. सर इसका कितना आ गया, ये 2 नीचे ले जाऊं मैं, 2 नीचे ले जाता हूँ ना. हाँ, पाई बाई टी 12 बन जाए। टी इज इक्वल 1 बाई टू 12 टी बाय बाई 12. सो 12। टी बाय 12 पे आई कवर एक्स इज इक्वल टू a/2. नेक्स्ट टाइम आई हैव टू कवर, तो आपको ये पता लगाना है कि एक बार आपने निकालना है ऑपोजिट डायरेक्शन वाले पॉइंट्स को, और एक बार निकालना है टाइम गैप बिटवीन द. तो T1 पता चल गया मुझे, राइट. और मुझे मालूम है 1 एंड दूसरा कौन सा पॉइंट है जो ऑपोजिट है उसकी डायरेक्शन में, 1 and 2. 1 and 2 आर एट द सेम पोजिशंस बट इन द सेम ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट. तो 2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, विच मीन्स द सेकेंड आंसर. सो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा अब, एक मैंने π/6 डाला, और दूसरी बार मैं डाल देता हूँ 2 π/t इंटू टी इज इक्वल टू 5 π/6 डाल दूं to find T2. हाँ डाल दो। This also gets cancelled. So T2 is equal to how much? 5/12t. So T2 minus T1 is equal to 5t/12 minus t/12 is equal to 4t/12 is equal to t/3. So it's the gap of t/3 when the particle is passing through 1 and 2, which are in the opposite direction as far as velocities goes. And for this to happen, there is a time period of t/3. Now you find for same direction, which means you find between 1 and 4, 2 and 3. 1 and 4. 1 is in this direction. 4 is also in this direction. So you have to find how much is the time difference. Obviously, you will take in one a/2. In the second, you will take minus a/2. 4 वाले में you will take minus a/2 and calculate corresponding t. आ रहा है समझ में? समझ तो आ रहा है, मुझे लगा आपने मेरे को क्वेश्चन करने को दिया था। हाँ, अब सेकंड पार्ट करो ना. थोड़ा फेस के बारे में गेट अ व्यू ऑल्सो फर्स्ट, कि फेस फेस होता क्या है, ये कैसे करते हैं. आइडिया अच्छा हो गया ना, थोड़ा लगेगा कि भी चलो एक्सपोजर मिल गया. हाँ। बहुत सारे बच्चे जो जेई के क्वेश्चन में यहीं पे पिटते हैं, उनको फेस के बारे में क्लैरिटी नहीं होती. वो बस वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वो याद करके आ जाते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन जो होता है हमेशा फेस का होता है. ओके।
फाइंड द टाइम डिफरेंस आपने निकाल ही दिया। मैंने तो सिर्फ एक डायरेक्शन का निकाला है ना। यू हैव टू फाइंड फॉर टाइम सेम डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन। द ऑपोजिट। हाँ, सेम डायरेक्शन, सॉरी, यस। सेम डायरेक्शन में 1 and 3 और 2 and 4 पॉइंट्स है। 1 और 4 सेम डायरेक्शन में है। 1 and 4, अच्छा। दोनों लेफ्ट पे, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ओके। ट्रिगो है बेसिकली, एंगल निकालने हैं फिर टी निकालना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 1 से 4 तक जाने के लिए? वो तो जरूरत ही नहीं है, आपको तो टी निकालना है। 4 पे टी, ए जो है एक्स इज -a/2, तो आपको टाइम इंस्टेंट पता लगाना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो a/2 से a/2 तक जा रहे हो, ए है, उसका क्या करोगे आप? फाइंड द टाइम इट टुक टू रीच -a/2। फोर्थ पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम इलैप्स हो गया, फाइंड दैट। और 1 पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम इलैप्स हुआ, फाइंड दैट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज योर टाइम। ये कोई काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ी ना है। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम। टाइम डिफरेंस 2 पॉइंट्स।
सर ये आ रहा है 11/12 t। हम्म 11/12 t। 11/12 t 1 और 4 का हाँ, फेस डिफरेंस कितना निकाला उन दोनों के बीच में? फेस देम कितना है? 4 और उसके बीच में? कैसे करा देखें जरा। यू बराबर। हैव अप्लाइड x इज इक्वल टू, तो ये तो आ गया वो 1। हाँ, ये आ गया 5 π/3। विच क्वाड्रेंट इज इट? थर्ड? ये के .3 तो दिस नहीं है? थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव है। हाँ, विच इज फाइन, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ना हाँ, फोर्थ हाँ, क्वाड्रेंट में क्या पंगा है? कोई पंगा नहीं है, बिल्कुल होती है। वो क्यों नहीं ली? हो सकता है ये 3 हो। भाई नेगेटिव तो 2 बार आई है ना, 3 पे भी तो नेगेटिव है। तो ये पहले आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बाद में आती है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ले लेता हूँ। वैसे फेज डिफरेंस कितना इन दोनों के बीच में, 1 और 4 के बीच में?
और 4 के बीच में फेज डिफरेंस, एंगल की टर्म्स में अगर बात करें डायग्राम में, इस डायग्राम में 1 और 4 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? ज्यादा है। A/2 पे एंगल कितना आता है? सर फेज एंगल A/2 में ना पाई बाय कितना 6 एंग रहता है। पाई बाय 6। नहीं, वो तो आता है जब 2 पे हो आप। 1 पे 1 पे तो π/6 आ रहा था ना। वही तो पाई बाय 6 तो बोला है। हाँ, π/6। यहाँ पे π/6 पे, और 4 पे कितने एंगल पे हो? 4 पे हम्म, जस्ट अ मिनट। ज्यादा बड़ा एंगल है ना 3 से। हाँ, 360 माइनस 330। अब उसको फोर्थ हम्म, क्वाड्रेंट पे ले जाओ तो हाँ लेना जरा। 333। 330। 330। और यहाँ मतलब पे एंगल कितना है? कुल मिला के 300 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 300 डिग्री का फेज डिफरेंस है, बड़ी अच्छी बात है। तो अगर मैं बोलूं कि कैन वी से दैट a phase difference of 2 pi हम्म, is same as t time period? हाँ। Can we say that? भाई पूरा 2 pi रेडियंस ही हो जाए अगर, तो it corresponds to full time t. यस यस। And if it is 5/6 pi, which is 300 degree, तो कितना होगा ये जिस 5t/12। आंसर? तो पहले फेज डिफरेंस निकाल लिया दो दो पॉइंट्स के बीच में, अच्छा। और फिर इसको कन्वर्ट कर लिया टाइम में इस लॉजिक हम्म, से। अच्छा, ठीक है। नहीं, ठीक है ठीक है। ओके। सो फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप। Look at the ओके, title we are ठीक है, studying. समझ गया मैं। Look at the title we are studying. फेज डिफरेंस, And time difference. टाइम डिफरेंस, ओके। तो तो ये हमने बड़ी पहले फेज डिफरेंस निकाल लिया और फिर उसको कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट कर लिया। ये मेथड भी बुरा नहीं है, बट इसके अंदर लाइक यू डिड ओनली वन, यू टूक π/2 एंड देन यू टूक -a/2 का, यू टूक आई थिंक हाउ मच एंगल? हाँ, मैंने फाइव फाइव। टी बाई थ्री लिया ना, मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लिया। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो मैं आ फोर्थ तो उससे भी क्वाड्रेंट में ले जाता। हाँ, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एक बार ले लेता हूँ जरा। आ तो उससे भी जाता, बट यू शुड हैव बीन केयरफुल कि मैं है ग्राफ पे वो नेक्स्ट है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एक मिनट। हम्म, ये कितना एंगल है? 6। 11 पाई बाय 6। कितना आता है? सिक्स थ्री थर्टी थ्री थर्टी थर्टी डिग्री थ्री थ्री थर्टी थर्टी ठीक है। 6 2 12, 11 नीचे आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे टी है, सॉरी उल्टा उल्टा उल्टा, ये यहाँ चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 11/12 ठीक है। T2 इज इक्वल टू दिस, और T1 वॉज दिस मच, सो यू विल सब्ट्रैक्ट दीज टू। हाँ हाँ, ए T2 यस यस। 10/10 t/12। इज इक्वल टू, T2 - T1 विच इज 5t/6। वही सेम आ गया। सेम ही है मेरा भी, सेम आ ठीक है, गया पर तो मेरा लेंथ भी थोड़ा ज्यादा है। हम्म हाँ, ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। ठीक। So, so now what we will do, we will use this to, so let's take a situation. Okay, let's say we have
spring mass system, and this is the spring. Okay. And सही, this is a फेज spring. डिफरेंस वाली चीज तो वेव्स में भी आती है। हाँ, तभी तो ये सीखना जरूरी है ना सारा. हाँ। If you have clarity on phase, a point wave is nothing but multiple points in simple harmonic motion. ठीक है, तो इसलिए आपको एक पॉइंट या एक ब्लॉक या एक चीज का तो आना चाहिए कम से कम कि so this is a block connected to a spring, and it oscillates in a vertical plane with a time period t. Okay, so up and down it oscillates, and uh, इसका equilibrium position जो है वो यहाँ पे है. Okay, this is its equilibrium position. So let's say this is its equilibrium position. अभी equilibrium position पे नहीं है ये. Okay, and this is at a equilibrium से ये a by 2 पे है. Okay, so now at this y is equal to a by 2 पे ऊपर है, and this is y is equal to 0. Okay, and this is situation one of the, and you can take it to the other extreme also, where it crosses the mean position. So this is your y equal to 0 is the mean position. It reaches here, which is a by 2 minus a by 2. क्योंकि ये it follows this कि ये वाली part plus है, ये वाला part minus है. So the origin है आपका, right? So this is a by 2, this is minus a by 2, and this is minus a by 2. Okay. And then of course it has to have a इसके ऊपर, ये इतने डिस्टेंस के ऊपर it will have amplitude, so it can go till here, and अभी a by 2 पे है, ये इसका equilibrium है, and on the lower side it can go to the minus a, right? It can go to minus a. So this is plus a minus a. Okay, so you have to find the time this vertical oscillation takes to start from y is equal to a by 2 and reach plus a by 2, right? But the condition is it reaches uh, the time it takes to reach minus a by 2, but while going back, which means in this direction. So it comes down till this position. यहाँ तक आ गया ये. So it touches minus a, and then it starts going back in this direction, and it reaches here. You have to find this is situation one. Okay, this is situation one. When at some instant you noted that it was at y is equal to a by 2, and then at second instant you noted it was at y is equal to minus a by 2, but it was going upwards. You have to find the time difference between these two positions, y is equal to minus a by 2. तो मैंने वर्टिकल कर दिया उसी बात को जिसको मैं ऐसे दिखा रहा था, बट दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो ये जब हमने नोट करा था तो इट वाज गोइंग डाउन. अगली बार हमने नोट करा इट वाज गोइंग अप एंड इट वाज एट माइनस ए बाय 2. यू हैव टू फाइंड y is equal to a by 2 plus going downwards and y is equal to minus a by t going upwards के बीच का टाइम गैप t1 एंड t2.
y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। हाँ, that is given. That is the equilibrium position is given, and there was no initial phase. So that is given. You just need to find delta t. What is the time it takes to be between these two positions? And obviously, in the context of SHM, they have a phase difference. बिल्कुल वही है, 1 and 4 ही तो है। नीचे से भी ऊपर आता हुआ जा रहा है, तो 1 and 4 ही हुआ। नहीं, हाँ 1 and 4 ही है। क्या हुआ, 3 के टाइम पे लेफ्ट पे जा रहा होगा, फिर 3 वापस आ रहा होगा, तो 4। यस। 1 and 4। हाँ, और क्या है, 1 and 4 ही तो है बेसिकली, ध्यान से सोचा जाए तो। हाँ। या कुछ और है? नहीं, मेरे ख्याल से तो सेम ही है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम π/6। It reaches the maximum amplitude and then again comes back. अच्छा नहीं, you have to find the time taken by the uh, particle to move from, नहीं, ठीक है, from the position y is equal to a/2 to y is equal to -a/2। तो 2 बार पास हो रहा है बेसिकली, a/2 से -a, एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक बार वापसी में। ठीक है, जस्ट फाइन। मेरे हिसाब से तो दिस इज, एक बार π/3 पे, टोटल π/6 पे है। टाइम पीरियड तो t है। हाँ वो तो हाँ। एन वो तो एस एन ई एस पहले एच फेज डिफरेंस निकाल लेते कितना होगा। हाँ, फेज डिफरेंस यहाँ पर ये यहाँ पर ये π/6 होगा और यहाँ पर ये क्या कहते हैं। हम्म, 7 π/6। कितना हुआ, 210। हाँ। दो सौ हाँ, दस और 30, मतलब 180 डिग्रीज का वो है, पाई है फेज डिफरेंस। नहीं, जब वो a/2 पे था तो उसका फाई कितना है, थीटा कितना है? थीटा उसका सर π/6 है ना। ठीक है। और जब और -a/2 पे तो 210 डिग्री 7 π/6। माइनस विच, नहीं नहीं, नीचे जाते हुए, वापस आते हुए। वापिस आते हुए -a/2। फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ ना फिर से, ये तो फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हो रहा। हाँ, थर्ड तो क्वाड्रेंट में लेफ्ट पे, मतलब नीचे की तरफ जा रहा होगा वो।
a/2 से a की तरफ जा रहा होगा, -a/2 हाँ से। तो नहीं, -a/, 300 डिग्रीज है ना फिर। हाँ, ये तो बिल्कुल सेम ही तो है जो अभी हमने करा है। हाँ, 300 डिग्रीज, तो सेम ही आंसर नहीं आ जाएगा? हाँ, सेम ही तो है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? क्या कहते हैं, 5t/6। हम्म। मतलब 5t/12, सॉरी। राइट। और कुछ निकालना था फेज नहीं डिफरेंस के नहीं, अलावा? यही है बस, दैट्स ऑल। ओके। Okay, so a particle is executing SHM with amplitude A. So a particle is executing SHM with amplitude A. चलो दिया हुआ है. And the angular frequency is omega. Okay. At an instant, the particle is at a distance. At an instant, the particle is at uh, a distance of a/5 from the mean position. Okay. And is moving away from it, and is mean position, and is moving away from it, which means the mean position की तरफ नहीं, away जा रहा है. Okay. Find the time after which it will come back to the same position and find the time after which it will pass through the mean position. पूरा मतलब घूम के आएगा, दूर जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा और वापस घूम के मेन पोजीशन पे आएगा. और दैट इज व्हाट a/5 पे था और वापस a/5 पे आएगा, तो ठीक है. निकाल लो, लगाओ अपना ट्रिग्नोमेट्री आंसर. या ये चैप्टर को ना मैथ्स में होना चाहिए वैसे। बाहर मैथ्स में होता है ये, कई हाँ। कंट्रीज में मैथ्स में है ये. हाँ, फालतू में फिजिक्स में डाल दिया इसको। बहुत फेज फेज और एंगल एंगल है. मैथ्स में डाल के खत्म करो इसको, कि फिजिक्स में सता रहे हो हमें। सर इवन तो अमित एम अग्रवाल में भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें ही है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में की में, उसमें भी फेज हाँ. है वैसे। अच्छा. हाँ, होगा. हाँ।
क्या a/5 देके बस इसने वो कर दिया, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। तो वो क्योंकि ए, एंगल निकालना होगा ना। वो उसका तो होता ही कुछ नहीं है, मतलब a/2 a/3 उसका तो फिर भी निकल जाता है, a/√2 का। हम्म, a/5 देने का क्या लॉजिक है, खाली पीली। नहीं, a/5 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। वो तो ठीक है, लेकिन इनवर्स में ही आ गया ना आंसर तो। हाँ, इनवर्स नहीं आ जाएगा। वैसे 1/5 होता कितना है? लाइक वो तो चेक करना पड़ेगा टेबल में। नासा वालों का है ना एक साइन। हाँ, ये रहा नासा वालों का। हम्म, 1/5 इज 0 मच। मतलब साइन बता रहे हो? हाँ, साइन साइन 1/5। साइन इनवर्स 1/5 इज हाउ मच एंगल? हम्म। ओके। वही। नहीं, वन बाय पॉइंट फाइव टू इज छोटा सा ही होगा। 0.25, which अच्छा। is 14 degrees approximately. हम्म। 14 degrees और हाँ। हम्म। फिर बारिश शुरू हो रही है? मैं तो धूप है। अच्छा, नहीं लग रहा था मुझे, हो नहीं रही। हम्म, 14 डिग्रीज ही है। ये बेकार सा क्वेश्चन है बड़ा एकदम। छोड़ू। और क्या, कुछ नहीं करने को इसके अंदर, मतलब देयर इज नो, सिर्फ इनवर्स से खेलने के अलावा आई डेंट सी एनीथिंग। कंप्लीटली स्टूपिड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक दिस इज अ बेटर क्वेश्चन। राइट द इक्वेशन of SHM. The equation of SHM by x equal to, for a situation with angular frequency
omega and amplitude A if at t equal to 0, the particle is located at a by root 2 and is going towards the mean position. Still a better question. ये क्या लिखा है सर आपने? Write the equation of SHM. अच्छा, वैसे साइन को आगे सिम लिख देता हूँ गलती से। साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 pi f. This is omega. टी इक्वल टू 0। Going towards the mean position. Okay. A by root 2. और ये माइनस क्यों लिया?
ये देख के। ये अपने माइनस लिखा है ना। नहीं नहीं, माइनस नहीं है, ये ऐसे ही है। अच्छा। वही मैं सोच रहा था, माइनस कहाँ से आ गया। मैंने तो नहीं लिखा कहीं। नहीं, वो माइनस लगा था। है ना। ए बाय रूट टू नॉर्मल है। अच्छा अच्छा। 45। हाँ ठीक 45 है। अल्फा इज इक्वल टू फेज कांस्टेंट 45। हाँ, मैंने बता दिया। 5/4। हाँ। और 1 मिनट, 180 माइनस 5/4, 3 पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि इट इज गिवन ना, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मेन हाँ पोजीशन। ठीक है, तो पाई/4 आ गया ना। क्यों? व्हेन यू आर एट द मेन पोजीशन समवेयर, व्हेन यू आर गोइंग अवे, you are actually at a lower phase. When you're coming back, you've already covered substantial phase, right? When you're coming back towards the main position. So you're going towards the main position. तो 3 पाई/4। हाँ, ठीक क्योंकि इधर तो बहुत थोड़ा सा फेस कवर हुआ ना इधर। है। ओके। When you're moving away from the, when you're coming back, you've covered वहां से वहां तक आ रहे हो, ठीक ज्यादा है। फेस कवर हुआ है। ठीक है। राइट द इक्वेशन नाउ, पुट अल्फा here. That's your SHM equation. यस। नाइस। sin ω t प्लस 3 पाई/4। यस सर। अच्छा जी। हम्म। सर इस पूरे चैप्टर में क्या ट्रिग्नोमेट्री है? हम्म। देख तो रही है। हम्म, इसको मैथ्स में डाल देते हैं तो फिजिक्स में लोड कम होता। मैथ्स वाले बोलेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा है ये होता क्या, एक्सेलरेशन, मीन नहीं नहीं, पोजीशन, एक्सेलरेशन तो मैं फेस। काफी टाइम से पढ़ा ही रहे हैं, मैथ्स में भी पढ़ाते ही है काइनेमेटिक्स तो। हाँ, कई कंट्रीज में होता है ये, मैकेनिक्स को मैथ्स में डाल दो। मैं नेक्स्ट। इवन तो सेंटर ऑफ मास वाली चीज है ना, वो भी मैं मैथ्स में होनी चाहिए। हम्म। थोड़ा फेल टू लोड हो गया। फेल टू लोड। फेल टू लोड है। हम्म। ओके। सब साफ हो गया। अच्छा ये स्क्वायर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब एम्पलीट्यूड।
मैक्स बट कौन से पॉइंट्स पे होगी? कौन से पॉइंट्स पे होगी? दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस हाँ टाइम, राइट? हम्म, माइनस साइन के साथ आता है ना ए का, डबल डेरिवेटिव होता है एक्स का। इट्स अ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा? अबे नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हाँ, उसका डबल डेरिवेटिव एक ले लीजिए। डेरिवेटिव लेते हो तो वेलोसिटी आती है, डबल हम्म, डेरिवेटिव लोगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगी। हम्म, ठीक है। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सिंगल डेरिवेटिव। सॉरी, टी स्क्वायर ये आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब ओमेगा टी 90 हो जाएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन। आई थिंक नेट नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। नो। एम आई ऑडिबल नाउ? नो। हाँ, नहीं नहीं, यू आर ऑडिबल। डबल डेरिवेटिव ले लिया, ए ओमेगा स्क्वायर साइन टी, साइन ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। राइट। उल्टा साइन का भी नजर आ गया, नेगेटिव वाला। हम्म। ओके। हम्म।
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अब निकालनी है। ओके। um, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? एक्सेलरेशन का डबल डेरिवेटिव तो ले गया। हम्म। वही फंसे हुए हैं। बहुत सोचने की बात है, बहुत। बोलता है बेटा सामने दिख रहा होता है लेकिन दिखता नहीं है, यही तो है क्वालिटी क्वेश्चन की। सामने दिख रहा है। मुझे दिख गया। देखो देखो ध्यान से देखो। सर आपने क्या एक्सरे लगा रखे है क्या? है। अपने क्वेश्चन के आर पार देख लिया क्या? एक्सरे ही है। दिख गया मुझे बस। अच्छा बताओ, वो चीज है क्या? ऐसी क्या चीज दिख गई आपको? हैं? हाँ? मुझे दिख, आई कैन सी इट विद माय आईज। क्या कर सकते हैं, क्या आई थिंक करेंगे। आई एम ब्लाइंड। यस यस यस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। वर्मा जी ने क्या बोला था? वर्मा जी हाँ, ने क्या क्वेश्चन बोला के था नाम पे सिर्फ ये है, द भाई? क्वेश्चन इज अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। वर्मा द जी की ग्राफ बात shows the मान लो आज variation तो। with time and acceleration of an object x undergoing SHM. हाँ। यस। Determine the maximum displacement. Give your answer यही to an बात है। appropriate number of significant हाँ, figures. ये है बस क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक बात है। मंदिर यहीं बनाया है। अच्छा बता तो दो, चीज है क्या, एक बार तो मंदिर बताओ। यहीं बनाया है। मंदिर ही बनाया है। आ, कोई टाइम इंटरवल है क्या जो आपको दिखा है? हाँ? हम्म। कोई टाइम इंटरवल है क्या? बहुत कंफ्यूजन यार। ओ भाई, ये दिख रहा है, ये क्या है? ये दिख रहा है। दिख रहा है? अच्छा। एक साइकिल ओके। पूरे की टाइम पीरियड दिया हुआ है पूरा 12। टाइम पीरियड ही तो है ये। तो 12 ओमेगा सेकेंड्स इज का। इक्वल टू 2 पाई बाय टी। व्हाट? ये तो चीज देखनी थी। और क्या भाई? अच्छा। ए ओमेगा स्क्वायर ओके। कितना दिया हुआ है? हाँ ये ये। भी तो नोट कर सकते हो, ए ओमेगा स्क्वायर कितना है? 2.5 है हाँ। नहीं ग्राफ हाँ। से। ये ओमेगा स्क्वायर, यस। ए मैक्स इज ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 2.5 हम्म। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा भी मालूम चल चुका है। ओके। थ्रेशोल्ड ग्राफ का ग्राफ को समझना को था पूरा। पढ़ा नहीं, देखा सिर्फ, पढ़ा नहीं, उसके अंदर नहीं झांका। हाँ, हाँ। इसकी स्टोरी क्या है ठीक है। ग्राफ की? अगर क्वेश्चन का मैं पूरा फोकस देखूं या एरिया देखूं कितना कवर करा है, तो ग्राफ ने बहुत जबरदस्त करा हुआ है। सारी स्टोरी ग्राफ के अंदर थी। चीख चीख के समझ बोल रही गए। थी, सुन लो सुन लो सुन लो। आया समझ में? हाँ। ओके। आपसे ग्राफ वाले क्वेश्चन, पहले ग्राफ ही देखूंगा कैसा है। घूर घूर के देखूंगा ग्राफ को। हर हर क्वेश्चन की एक स्टोरी होती है, याद रखना। सो द स्टोरी ठीक हैज है। टू बी क्लियर, व्हाट स्टोरी इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू यू एंड व्हाट एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी आर मिसिंग। तो वो अगर हाँ। स्टोरी पकड़ ली
तो मतलब पकड़ लिया। नहीं तो गोल गोल घूमते रहो, सामने लिखा होता है लेकिन दिखता नहीं है। ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। फिर बेवकूफ बना दिया इस क्वेश्चन ने मेरा। बहुत तगड़ा, तगड़े वाला। वैसे बेवकूफ तो मैं पहले से ही हूँ, बट ओके। नहीं, दिस ब्रिंग्स lessons right at learning stage, how you have to. फिजिक्स में ग्राफ्स, डायरेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू। ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक मिनट, एक मिनट। अगेन यू आर बीइंग फोर्स्ड टू थिंक। हम्म। आई विल थिंक फर्स्ट। सोच लो, एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स होती है, तो कई रीस्टोरिंग फोर्स बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी टू भी द। उस डायरेक्शन में हो सकती है। हाँ। और नहीं नहीं, माइनस साइन होता है वो वो डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच में होता है। जब डबल डेरिवेटिव लिखते हैं, एक्सेलरेशन और ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वो माइनस साइन आता है टू शो दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट, राइट, टू वट एवर डायरेक्शन यू टेक, बट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है डायरेक्टेड, राइट, इट ऑलवेज वांट्स टू ब्रिंग इट टू इक्विलिब्रियम। सर मेरे हिसाब से थोड़ा सोचूं। मोशन जो के बारे में सोच के वेलोसिटी। देख लो ना। अब तो ग्राफ, साइन ग्राफ मालूम है। ऑपोजिट ही होता है। क्या ऑलवेज क्या इन ऑपोजिट द होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। अच्छा, show me a position in SHM. For example, a bob. You're a bob. Okay, so this is your bob. It goes like this. So velocity is in this direction, and the restoring force is in this direction. When it is coming back, तो ऑपोजिट ही तो होएगा। the velocity and acceleration are in the same direction. नो। Opposite कहाँ पे? सेम ही तो है।
रिस्टोरिंग फोर्स आप बोला टुवर्ड्स द ऑपोजिट मीन डायरेक्शन में पोजीशन, लगती है। वेलोसिटी भी मीन पोजीशन। अच्छा। नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग इट ऑन द मीन पोजीशन। ओके। रेस्टोरेशन तो मीन पोजीशन से डिस्टरबेंस है ना, wants to go back, you bring it here in the same direction for a quarter of the period, in the same direction for half the period. So if we consider half the period, एक तो ये गया इस साइड गया और फिर ये ऐसे आया, दिस इज हाफ द पीरियड राइट। सो क्या आर दे इन द सेम डायरेक्शन? वेलोसिटी तो इधर है और रीस्टोरिंग फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो ये तो गलत है। क्वार्टर ऑफ अ पीरियड, यस, if you're going in this direction, then acceleration is in this direction. So quarter of a period we can say, right? हम्म। When you're going back, your velocity is in this direction and your acceleration is also in the same direction हाँ। for a quarter of a period. हम्म। सी लग रहा है सही। For a quarter of period they are. बट फॉर अ फुल पीरियड, फॉर टाइम टी। You're there? You're not audible. मैं कह रहा हूँ कि फॉर अ टाइम टी हम्म। तब भी वो सेम डायरेक्शन में होंगे। पूरे टाइम पीरियड में हम्म। कैसे? तब मैं पूछ रहा अभी हूँ तो कि वो दिखाया सेम है। डायरेक्शन में होंगे या फिर वो ऑपोजिट में होंगे। We can always see na, if you have a body which is going in this direction, the velocity is here, but the restoring force is in this direction. But when it is going back in this direction, the restoring force and velocity are in the same direction towards the center. ये V है और ये A है. Restoring force या acceleration is always directed towards the mean position. अच्छा। वो डिस्प्लेसमेंट होती है उल्टी। भाई आपने इस तरफ डिस्प्लेस करा अगर, तो तो ठीक है। मीन पोजीशन के, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑपोजिट, ठीक है। ये नेगेटिव साइन। ये वेलोसिटी और ए की बात हो रही है। आई थिंक दिस इज करेक्ट, क्वार्टर ऑफ अ पीरियड ओनली इट इज इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, समझ गया मैं। चेक करना एक बार।
ग्राफ ही बनाना है। हम्म। मुझे ना ग्राफ वाले क्वेश्चंस ना बड़े वो लगते हैं, समझ ही नहीं आते कोई बार। कैसे प्लॉट करेंगे बता दो। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। हाँ जी बिल्कुल। तो यू हैव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, हम्म। ए बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, हम्म। ए वाई is equal to minus omega square x. This is a constant with a negative slope. Y is equal to minus mx, मतलब slope is negative. As हम्म। the displacement increases, what happens? नेगेटिव साइन आ गया ना, ये वाला दिख रहा है, ये हाँ। माइनस। अगर मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी एक्सेलरेशन को क्या होगा? यस, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव साइड पे। यस, आंसर। नॉट वेरी टफ। हाँ। होपफुली आज दिमाग खुला होगा थोड़ा सा और। हम्म। आज मैथ्स थोड़ी ज्यादा हो गई। पर अब इस मैथ्स को मुझे डाइजेस्ट भी करना है। समझ आ गया तो डाइजेस्ट क्या करना है? प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस के साथ। श्यामलाल के साथ। श्यामी ब्रो। तो थर्मोड वैसे इसमें कुछ एक मिनट। हाँ, okay।
एक मिनट जरा, लेट मी जस्ट कॉपी इट। अरे सर एक और क्वेश्चन। लास्ट। क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ पूरा कर रहा हूँ कॉपी। वाओ कितनी अच्छी शेप्स है। सर सबसे अच्छी शेप तो ये है। Bodies go under velocity. Oh, velocity. X equals to a sin omega t. मैं फिर से साइन को सिम लिख देता हूँ। सर बी होना चाहिए। तू बेटे यार, होना चाहिए नहीं। नोबडी सीकिंग आंसर्स, वी आर सीकिंग फिजिक्स एक्सप्लेनेशंस। हाँ सर, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है हम्म। वो होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ होती है। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होती है ए साइन ओमेगा टी। हाँ बिल्कुल, ये तो पता है, यहाँ तक सही है। आगे। आगे। बहुत अच्छा, ये दोनों ठीक लिखे हैं, बहुत बढ़िया। थैंक वेरी यू सो नाइस। मच सर। नोबेल प्राइज मिलेगा मेरे उसके लिए, थैंक्स। यस, ज्यादातर फ्रांस से ही आते थे नोबेल प्राइज। हाँ जी सर। इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। करो करो करो, डिवाइड करो, बहुत अच्छा है। टेन ओमेगा टी बहुत अच्छा है। जैसे डिवाइड करते हुए कुछ दिख तो नहीं रहा। दिख तो नहीं रहा यार भाई। सही दिख तो बात रहा है। नहीं, कुछ बात तो सही है। तो सही फंस है। गए भाई, से फिर से फंस गए। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, देखते ये हैं कुछ बेस्ट है। कुछ चमत्कार हो जाए। चमत्कार। ए साइन स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी राइट। कॉस ओमेगा टी। तो वाओ, कुछ वही नहीं। ये कैसे ऐसी शेप है ये। हम्म इक्वेशन ही लिख। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी वेलोसिटी बता रही अब तो। हम्म सर्कल और ये
साइन टू एक्स का ग्राफ देखो। हम्म, सर वैसे बी होना चाहिए क्योंकि साइन, हम्म, क्योंकि क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्योंकि इक्वेशन में अगर देखा जाए, जी। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, करो। इसको मैं अगर ए स्क्वायर बाय ओमेगा इंटू टू साइन टू एक्स भी लिख सकता हूँ, साइन हाँ टू ओमेगा टी। जी। और ये जो ग्राफ है थोड़ा बहुत भी क्या पूरा सिमिलर ही लग रहा है साइन टू एक्स के। हम्म। तो लग मैं तो बी के रहा है। साथ जाना चाहूंगा। पी के साथ जाना चाहूंगा, ठीक है। हमें कोई इक्वेशन ऑब्जेक्शन में नहीं है। साइन टू ओमेगा टी आ रहा है। और ये मेरे को बता रहा है अच्छा। कि बी ऑप्शन जो है, वैसे एक मिनट, एक और भी देख सकते हैं। बी मेरे को अभी भी गलत लग रहा है। ठीक है। बी और सी में कंफ्यूज कर रहे हैं अब। बट बी सही है फिर भी। ठीक है, बी सही है। बी के साथ जाना चाहिए, साइन टू ओमेगा टी है। ठीक है। चेक कर लो आंसर। ओए होए। साइन टू मेगा डी, ओके। बढ़िया। क्योंकि मैंने अपना बिग ब्रेन यूज किया। हम्म, वैसे हमने पढ़ा हुआ है हाँ। कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, हम्म। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल इट टू इज एन वन। एलिप्स। एलिप्स था यार। ओ। ओ। बेटा नो। एसएल से मैं खुद पढ़ लूंगा। एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। एसएल वर्ल्ड में बैठे रहे बेटा, एसएल एसएल ए की वर्ल्ड में जाओ अब तुम। हाँ, लगता है वही जाना पड़ेगा। हाँ। तो थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी चाहिए होती है स्पून फीडिंग के अलावा। हाँ। यस।